welcome to VLearn Session 4 New Venture. So yes, as we discussed about the entrepreneurship, so now we are moving towards understanding what is new venture. The topic will be covered in introduction, creating and starting the venture, why should write the plan, scope and value of a business plan. So now the first topic, why people become an entrepreneur. अगर एक entrepreneur का concept आता है, so why people want to be an entrepreneur? What was the reason behind they want to be an entrepreneur? So they were, as we see in the slide, there were the 4 reasons why the people wants to be an entrepreneur. The first one is desire to be the one own boss. When the person actually wants to be the own boss, जब वो अपने बिजनेस में खुद कैरी फॉरवर्ड करके अपने आप को खुद लीड करना चाहते हैं, तो इन दैट केसेस वो एक एंटरप्रेन्योर की तरफ स्टेप लेती हैं. देन डिज़ायर टू सक्सीड फाइनेंशियली. येस, इफ दे वांट टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट विद दैट एफर्ट, सो इन दैट टर्म्स ऑल्सो पीपल विल वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. जब फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज़्यादा लेने की इच्छा और ज़्यादा और अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने की एक जो डिज़ायर होती है वो अराइज होती है, दैट्स कम्स इन टू दी to succeed the financially. Then desire to the job security. Yes, when we are working as in a wage employer, so in that terms wage employment के अंदर we always looking towards that कि job security बहुत ज़्यादा point of view से नहीं होती, there was always a less number of job security. In that terms, yes, when the people was looking towards the secure job position, that terms they probably go towards the business or entrepreneurship. Then desire for an improved quality of a life. Yes, when they will actually want some good standard of living and good desire to be the quality of life and a quality of a person, and that term also that person wants to become an entrepreneur. So these are the basic 4 reasons जो कि ये define करते हैं कि एक person actually entrepreneur क्यों बनना चाहता है. They want to be their own boss, they want to be financially successful or earn a good finance, and yes, at the same time they must have the security point of view, or at the same time quality of a life as well. So these are the 4 basic reasons. So now yes, we are moving towards the another one, that is the environment of entrepreneurship. अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंट्स होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं. दैट मीन्स इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, so what's kind of an opportunity and threats you were looking forward. So in that terms, yes, there were the factors supporting and expanding the opportunities for the entrepreneur. Entrepreneurs कौन से ऐसे factors को consider करता है, उन factors को properly understand करके और उन्हें apply करके उन्हें एक opportunities की तरह भी ले सकता है business के लिए. So that first is the globalization. Yes, globalization is one of that scenario जो एक बहुत बड़ी opportunity provide करता है. Reason behind is the market is globalized. अब एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ही मार्केट में रिस्ट्रिक्ट नहीं रह सकता. देवर दी होल वर्ल्ड इज कंसीडर्ड एज वन मार्केट. सो दिस इज वन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट. सो दैट इज वाई ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द फैक्टर जिसके थ्रू एक पर्सन ये डिफाइन कर सकता है दैट द अपॉर्चुनिटी सिनेरियो इज एक्चुअली अकर्ड इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस इन नॉट और नॉट. देन एजुकेशन. येस, एजुकेशन इज अनदर फैक्टर. जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस सेशंस में भी एक्चुअली स्टडीड अबाउट that what is the relationship between education and entrepreneurship. अगर education और entrepreneurship की बात की जाए तो उसमें क्या reason होता है. So yes, this is one. जितना ज़्यादा एक entrepreneur educated होगा, aware होगा about the market, about the competition, किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. सो इन दैट केस वो उसे उतना ही ज़्यादा अवेयर करता है कि what was the opportunities and threats arising in the market और वो उन्हें किस तरीके से अडॉप्ट करेगा. So this comes into the education part. Then information technology. Yes, taking the help of the IT sector. आप information technologies की help ले सकते हो by considering the various software, various techniques which comes into a market to just to upgrade your business growth. So in that case you can take the information technologies help. And then demographic and economic trend. This is what understanding that एक particular segment या जिस भी market में आप टारगेट कर रहे हो या जिस भी मार्केट में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, अपना एक एंटरप्रेन्योर शुरू कर रहे हो. सो इन दैट केस येस इट मस्ट बी डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके की है, पॉपुलेशन किस तरीके से बिहेव करती है, किस एज सिनेरियो की है, किस इनकम सिनेरियो की है, और एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट हाउ द कंट्री इज परफॉर्मिंग, economic growth कैसी है, what was the income growth, what was the GDP growth of that particular country. So in that case, yes, demographic and economic trend, we need to study this also. So these are the four main factors जो कि हम लोगों को understand करने पड़ते हैं. This is comes under the entrepreneurship and environment. That means these are those environment, these are those sectors जहाँ पर जिसकी हेल्प से या जहाँ पर वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, एक अपॉर्चुनिटीज़ को राइज कर सकता है. So these four are globalization, education, demographic and economic trend, and yes, information technology. So these are those. Then now yes, we are moving towards the characteristics of entrepreneurs. Yes, as we discussing about entrepreneurs कि एक person entrepreneur की तरफ क्यों जाता है, एक person जो entrepreneur क्यों बनना चाहता है. In that terms also there were few characteristics of understanding कि entrepreneurs होते क्यों हैं, या what was the basic characteristics of these. So yes, these are basically characteristics when we lined up the 8 characteristics. So the first one is vision. That person must have good vision. In that terms कि उसके पास एक proper vision होनी चाहिए कि वो अगर जिस भी तरीके का business start कर रहा है वो person, so वो किस तरीके की vision रखता है कि after 2 years, after 3 years या after 5 years वो अपने आप को या अपने business को कहाँ देखता है. So that is vision. और forecasting scenario उसका अच्छा होना चाहिए. देन हाई एनर्जी लेवल, वेरी मच एंथुजियास्टिक. ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर का एंथुजियास्टिक होना, क्योंकि इन दैट कंडीशन सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. सो इफ़ द पर्सन इज एंथुजियास्टिक, सो ऑब्वियसली वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर पाएगा. देन नीड टू अचीव, यस, नीड टू अचीव, अचीवमेंट सिनारियोज होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि द पर्सन हैव दैट सिनारियो कि नहीं we need to invest, we need to invest, we need to invest. So in that scenario वो कभी भी एक सक्सेस या अचीवमेंट्स की तरफ नहीं जाएगा. दैट पर्सन मस्ट हैव दैट फैक्टर कि if he or she is investing, so in that terms उसके रिटर्न्स और उसके अचीवमेंट्स कब आने शुरू होंगे. So in that terms, in that basis it must have a proper idea about what are the basic needs to achieve it. Then self confidence and optimism, yes, and it is another factor that comes, that person must have a self confident. उसे अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, वो जिस भी तरीके के स्टेप्स या जिस भी तरीके की डिसीजंस मेकिंग एक बिजनेस को लाने के लिए या बिजनेस में आगे अपग्रेडेशन के लिए यूज़ कर रहा है, वो उसको हेल्प करे. दैट कम्स इनटू द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड यस ऑप्टिमिज्म. देन टॉलरेंस फॉर द फेलियर. यस, इन टर्म्स अगर किसी भी तरीके की लॉसेस या किसी भी तरीके की फेलियर्स अगर एक बिजनेस के अंदर होते हैं, दैट पर्सन मस्ट टॉलरेट इट इन टर्म्स ऑफ टू बी गो एंड टेकन अ बैक स्टेप इन दैट. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो एक बैक स्टेप ले ले. उसे टॉलरेट करके आगे बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने का सिनेरियो उस पर्सन के पास होना चाहिए. एंड देन क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इज यस, जितना ज़्यादा पर्सन एक क्रिएटिव होगा उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस इनोवेटिव होगा. इफ़ योर बिजनेस इज मोर टुवर्ड्स द साइड ऑफ इनोवेशन, so that's very obvious the business is actually more towards the new things, new growth, new scenarios, new opportunities. So that is why it's required to be little creative. Then tolerance for the ambiguity. If we discuss about ambiguity, yes, that's true. Like the external environment, if we discuss about the external environment for the business, they keep on changing. जैसा कि अभी हम लोगों ने 4 environments को study किया. ये 4 environment कभी भी आपस में constant नहीं रहते हैं. They always keep on changing. So in that terms, yes, it should be that your business have that tolerance कि वो उन changes को कवर अप कर सके, उन्हें अडॉप्ट कर सकें एंड देन फर्दर मूव ऑन कर सकें. देन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. येस, द इंटरनल पावर, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. व्हाट वाज योर सिनेरियोज, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, आप उसके हिसाब से परफॉर्म कर सको. दीज आर द फ्यू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कि एंटरप्रेन्योर्स इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, इन सब चीज़ों को बेयर करें. सो इन दैट टर्म्स इट कम्स इनटू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. Now yes, we are moving towards the complete new topic, that is starting a new venture. जब एक किसी भी तरीके के venture start करने होते हैं तो किस किस तरीके के steps जो हैं एक business ले सकता है, किस किस तरीके के steps जो हैं business carry forward करता है.
तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज गेटिंग द बिजनेस आइडिया। पर्सन को एक आइडिया जनरेट होती है, एक आइडिया जनरेशन जैसा कॉन्सेप्ट आता है कि यस दिस इज दी फील्ड, पर्टिकुलरली फील्ड जहाँ पर एक स्कोप है ग्रोथ को अर्न करने का। सो इन दैट टर्म्स यस इट इज व्हाट जनरेटिंग दी सिलेक्टिंग अ बिजनेस आइडिया। Selecting a business idea is what finding something you love to do or are good at doing. That means आप वो करना चाहते हो जो आप जिसमें आप अच्छे हो या जो आपको अच्छा लगता है काम करना. And yes, it can be any idea satisfying a need of a marketplace, या आपकी जो भी market place है उसकी needs को जो satisfy करता हो, that is another business idea. So in that terms, selecting a business idea. Entrepreneur must be sure that the idea they choose has an interest in the marketplace. Yes, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा like that means अगर आप किसी भी तरीके की आइडिया जनरेशन के साथ आ रहे हो so it have in a scope in a market, आपकी मार्केट के अंदर इतनी स्कोप उसमें होनी चाहिए कि वो एक गुड ग्रोथ ले सके. इन दैट टर्म्स अगर वो बिल्कुल ही ऐसी मार्केट में आप एंटर कर रहे हो जिसके अंदर जो जो एक प्रोडक्ट में आप एंटर कर रहे हो दैट प्रोबेबली लीड्स टू दी the lower level or the slow level. In that terms problem is this कि आप वहाँ पर किसी तरीके की growth generate नहीं कर पाओगे. So in that terms yes, it's required to have a good and fresh idea और untouched market भी हो सकती है. So then after starting up a business idea we were moving towards the business plan. That is the company must have a good business plan. So that is what creating a business plan. जब एक company actually स्टार्ट करती है किसी तरीके के बिजनेस प्लान्स को अडॉप्ट करना, दैट मीन्स वेरी बेसिक आइडिया, वी गेट एन आइडिया कि इस तरीके के बिजनेस में हमने स्टार्टअप करना है एंड देन गेटिंग दैट आइडिया उसके बाद हम अपने बिजनेस प्लान्स को राइट डाउन करना शुरू करते हैं. तो दैट इज़ कि बहुत सारी ऐसी काम इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ गुड बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान को रिटन डाउन होना, बिजनेस प्लान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज इट्स एक्चुअली प्रोवाइड यू दी ऑब्जेक्टिव टू stable in the market to get a growth in a market. So in that terms yes it is one of the most required one. So that is what business plan do help the entrepreneur prepare enough resources and stay focused on the key objective. So when the business actually writing down all the business plan, so it always help that person to prepare that resources. वो जो resources जो utilize वो करने वाला है अपनी business growth के लिए, they stay with us, they stay focused on that particular key objective. So that comes into the creating a business plan. Then after getting the idea, then creating the business plan, then the third step is finding the financing. That means you are actually looking forward कि आप किस तरीके की financing actually start करोगे. So financing के लिए yes there were the two funds, debit financing और equity financing. Debit financing is kind of आप जब किसी तरीके की credit बेसिस पर जब आप फाइनेंस जनरेट करते हो या किसी फैमिली एंड फ्रेंड से यू टुक एन अ लोन और एनी काइंड ऑफ अ मनी यू अराइजेज और बैंक लोन अगर किसी भी तरीके के अराइजेज होते हैं. सो दीज ऑल आर कम्स इन टू द डेबिट फाइनेंसिंग. तो एक डेबिट फाइनेंसिंग लेकर भी फर्दर हम लोग फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं बिजनेस के लिए. और इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर येस दे वर द वेंचर कैपिटलिस्ट और द एंजल इन्वेस्टर्स. आप एंजल इन्वेस्टर्स आर बेसिकली दोज इन्वेस्टर्स हु एक्चुअली वांट्स टू या हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस में एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहते हैं. दैट कम्स इन टू दी इन्वेस्टर्स. और वेंचर कैपिटलिस्ट दैट मीन्स यू कम्स इन टू दी वेंचर. आप अपनी ही किसी तरीके से फाइनेंसिंग जनरेट करके यू आर एक्चुअली अप्लाइंग टू दैट पर्टिकुलर मार्केट. After getting that proper idea of the financing, the another steps comes into the government support for the new ventures. Yes, आप जब किसी भी तरीके के न्यू गवर्नमेंट या न्यू वेंचर्स के अंदर आप आ रहे हो तो किस किस तरीके की गवर्नमेंट सपोर्ट है. सो इन दैट टर्म्स यू हैव टू कंसीडर कि किस जोन में आप बेसिकली बिजनेस को अपने स्टार्ट कर रहे हैं, क्या रेगुलेशंस हैं वहाँ की. गवर्नमेंट सपोर्ट इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दी की रेगुलेशंस की. इफ़ अगर आप इसी किसी भी तरीके का अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किस तरीके की गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा. इफ़ यू वर एंटरिंग इनटू दी स्पेसिफिक जोग्राफिक एरियाज, तो उस जोग्राफिक एरियाज में बिजनेस स्टार्ट करने का सपोज यू आर पुटिंग हैवी मशीनरीज, तो क्या उसका प्रॉपर प्रोसीजर है. इन दैट टर्म्स यू मस्ट टेक एन अ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द इफेक्टिव और अ गुड न्यू वेंचर रादर देन डूइंग एनी wrong practice without unknowingly. So in that terms आपको आपके सारे rules and regulations पता होने चाहिए. So that comes into the government support for the new venture.
Now, yes, the question arises, what is business plan? If we talk about the business plan is kind of a written document which is prepared by the entrepreneur that describes all the relevant internal and external elements and strategies for the new venture. हाँ, हम लोग जैसे we were discussing about that कि एक बिजनेस प्लान कंपनी का होना चाहिए, उनके पास एक रिटर्न होना चाहिए. तो इन दैट टर्म्स क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज बिजनेस प्लान होता क्या है? So it is kind of a written document. ये एक written document होता है which is prepared by the entrepreneur, जो कि एक entrepreneur prepare करता है, taking care of that कि क्या internal and external elements हैं और क्या ऐसी strategies हैं जो वो person adopt करेगा अपने new venture के लिए. So that comes into the new business plan. So yes, it is a written document prepared by the entrepreneur, and yes, considering the all internal and external elements and strategies for starting a new venture. So it is the integration for the functional plan such as marketing functions, marketing, finance, manufacturing, sales, human resources. अगर हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, सेल्स या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, सो दीज ऑल द सेक्टर्स आर बेसिकली द परफॉर्मिंग एरियाज ऑफ द बिजनेस. ये वो फंक्शनल एरियाज होते हैं जो कि एक्चुअली बिजनेस में काम कर रहे हैं, बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं. इन दैट टर्म्स इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, यानी कि यू हैव टू रिक्वायर इंटीग्रेट ऑल टुगेदर. इन सबके काम को, इन सबकी एक्टिविटीज़ को एक साथ लाके we were actually moving towards that integration of functional plans. Then why should write a plan? एक अगर हम business plan की बात कर रहे हैं that it should be written. So why it should be needed to be written? So in that case, yes, it is the business plan should be prepared by the entrepreneur. That is question arises कि who going to be written it. So in that terms सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है to prepare that जो हमारा entrepreneur है वही उसे लिखे, उसे define करे. The entrepreneur must make consult with many other sources in its preparation such as lawyer, accountant, marketing consultant and engineers. So in that terms yes, किसी भी तरीके की जो preparation होती है business plans की, so in that terms ज़रूरी है आपके entrepreneurs इन सब से consult भी कर सकता है. These are those persons जो कि बिजनेस को किसी ना किसी तरीके के बेनिफिट्स या किसी ना किसी तरीके की गाइडेंस ही प्रोवाइड करते हैं. सो लॉयर्स हो गए, लॉयर्स ऑलवेज गिव्स दी लीगल गाइडलाइंस टू दी एंटरप्रेन्योर्स. देन अकाउंटेंट इज अनदर वन जो कि आपके सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स को बताता है. मार्केटिंग कंसल्टेंट, दीज आर दोज हु आर एक्चुअली हैव एन अ गुड नॉलेज अबाउट दी मार्केट एंड मार्केट के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिशरी है क्या नहीं वो भी डिफाइन होगी. एंड इंजीनियर्स yes as well as. So in that terms yes, these are there was the who going to be written it, the entrepreneur is going to be written it, and it takes the consultant of all these specialists. Now scope and value of a business plan, who reads the plan? So in that terms yes, if we were discussing about scope and value of a business plan, so in that terms the business plan may be read by the employees, investor, banker, venture capitalist, suppliers, customer, advisors and consultant. So in that terms yes, they were actually the one of the most important स्टेक होल्डर्स इन द बिजनेस. अगर हम बात करें तो हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वेंचर्स कैपिटलिस्ट, they all are actually having a some or how more or less they always having a certain stake in the business. So in that term yes, जो भी बिजनेस प्लान एक्चुअली क्रिएट होता है, जो भी स्कोप और वैल्यू बिजनेस की हम जनरेट करते हैं वो सब इन्हीं के लिए होता है. बिकॉज दे ऑलवेज वॉन्ट टू हैव एन आइडिया अबाउट योर बिजनेस कि आप बिजनेस में क्या करने वाले हो, बिजनेस में क्या करोगे. सो इस तरीके के आइडिया जनरेशन के लिए दे नीड बिजनेस प्लान. देन देयर आर 3 पर्सपेक्टिव शुड बी कंसीडर इन प्रिपेयरिंग द प्लान. अगर हम किसी भी तरीके के बिजनेस प्लान को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किस तरीके के पर्सपेक्टिव्स की जरूरत है. सो इन दैट टर्म्स कंपनी नीड टू कंसीडर 3 पर्सपेक्टिव्स. One is perspective of entrepreneur. What was the entrepreneur method to consider or to get the growth? Then marketing perspective. That means what was the marketing scenario of that particular market or a particular business. And then investors perspective. That means what was the investors point of view to perform in the work. In that terms, that means investors किस तरीके से perform करेंगे, investor किस scenarios के साथ काम करते हैं.
The business plan is valuable to the entrepreneur, potential investor, or even a new person who are trying to familiarize themselves with the venture, its goal and objectives. That's very obvious. हमारे जितना भी एक बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस प्लान जो होता है वो उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इज द एंटरप्रेन्योर आर बेसिकली गिविंग दी गेटिंग द आइडिया ऑफ एन अ बिजनेस कि वो किस तरीके का बिजनेस ले रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है. इन शॉर्ट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए, अल्टीमेट गोल को डिफाइन करने के लिए वी नीड बिजनेस प्लान, जो कि हमारे सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड फर्दर. यस, बिजनेस प्लान बेसिकली क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. सबसे पहले इट हेल्प डिटरमाइन दी वेरिएबिलिटीज ऑफ द वेंचर इन द डिज़ाइन द मार्केट. आपके पर्टिकुलर मार्केट के अंदर किस तरीके से बिजनेस प्लान परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप जब एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो आप उसी तरीके से परफॉर्म भी करोगे मार्केट के अंदर. सो दैट इट हेल्पिंग टू डिटरमाइन दी परफॉर्मेंस इन दी पर्टिकुलर मार्केट. Then it provides the guidance to the entrepreneur in organizing his or her planning activity. That is what guiding the entrepreneur. एक entrepreneur को proper guiding हो जाती है कि किस तरीके से वो अपनी activities को plan करेगा और किस तरीके से basically उनको organize करेगा. And then it serve as an important tool in helping to obtain the finance. So in that terms, yes, अगर आपके पास एक business perspective है, so you come to know कि किस तरीके से आप उसे आगे further lead करोगे. That means it serve as an important tool इन हेल्पिंग टू ऑब्टेन दैट फाइनेंसिंग. कि आपके सिनेरियोज क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर आपको कितने गोल्स, कितनी ग्रोथ लेनी है, उस ग्रोथ में आपको फर्दर कितनी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, किस तरीके के रिटर्न यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर. तो इस तरीके से हमारी फाइनेंसिंग भी हमारे बिजनेस प्लान डिसाइड करते हैं. So yes, there were the few questions which you have to do. Then that questions are, first is why people choose to be entrepreneur and what are the opportunities arising in the market. This is the very obvious one जो कि हम लोगों ने स्टडी किया था स्टार्टिंग में ही कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स क्यों बनना चाहते हैं लोग. सो इन दैट टर्म्स 4 ही बेसिस होते हैं. जब उन्हें अपने खुद बॉस बनना होता है, इफ दे वांट जॉब सिक्योरिटी, इफ दे वांट गुड फाइनेंसिंग, तो इन दैट सिनेरियोज में वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. किस तरीके की अपॉर्चुनिटी अराइज होती हैं. यस, ग्लोबलाइजेशन इज़ वन ऑफ दी अपॉर्चुनिटी. अगर एक डेमोग्राफिक या हम लोग एक इन्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी करते हैं तो दिस इज अगैन एन अपॉर्चुनिटी. इफ वी वर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द जनरेशन ऑफ द इनकम, इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी. सो इन दैट कम दीज आर द 4 अपॉर्चुनिटीज which actually arises in the market. And then what are the business plan and explain the scopes and values. This is what business plan क्या होता है जो कि हम लोगों ने डिस्कस करा. business plan is what that objective or that scenario जो आपको आपके business को actually एक ऑब्जेक्टिव देते हैं टू मूव ऑन और एक पर्पस देते हैं टू मूव ऑन. दैट्स कम्स इनटू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो एक एंटरप्रेन्योर मेंशन करता है एंड इट्स रिक्वायर्ड टू बी रिटन. सो इन दैट टर्म्स व्हाट वाज दी स्कोप्स एंड वैल्यूज, जो कि अभी 4 स्कोप्स एंड वैल्यूज डिस्कस किए गए थे कि इट हेल्प इन फाइनेंसिंग, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट पोजीशन, इट हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू परफॉर्म बेटर. सो दीज आर बेसिकली द वैल्यूज ऑफ दैट of the business plans. So yes, this is all about of today's session. So we were winding up for the today. For yes, for today. Thank you so much.